اور اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر میں حد بندی کبھی بھی حقیقت پر مبنی نہیں رہی ہے اور موجودہ حد بندی کمیشن کی مسودہ رپورٹ بھی حیران کن ہے، لیکن اس سے سیاسی عمل نہ ماضی میں بدلا ہے نہ مستقبل میں بدلے گا، کیونکہ کھلے عام دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ اس معاملے پر کانگریس سمیت مرکزی پارٹیوں کی خاموشی تعجب کا باعث ہے۔ ڈرافٹ سے سیاسی جماعتوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان باتوں کا اظہار پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے آج نیوز 18 اردو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ سجاد غنی لون نے آج کوپواڑہ لدرون میں سابق پی ایس سی ممبر مشتاق احمد وانی ایڈوکیٹ ممتاز احمد وانی کی والدہ کے انتقال کے سلسلے میں ان کے گھر جا کر لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ کمیشن کیا کوئی نیشنل پارٹی ہے جس نے بیان دیا؟ کھلے عام داندلی ہوئی، چپ۔ کچھ دیکھا گاندھی جی کے بندر نہیں، کچھ سنا گاندھی جی کے بندر نہیں، کچھ بولے گا گاندھی جی کے بندر نہیں، کچھ نہیں بولوں گا۔ تو جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ ساری نیشنل پارٹیز ہیں، کانگریس، باقی، when it comes to a certain thing they are all together۔ ہم اکیلے ہیں، ہمیں لڑنا ہے ظلم کے خلاف، یہ نیا ڈسرپشن کر رہے ہیں۔ اینڈ ون تھنگ آئی ول ڈو، دس ڈسرپشن از ناٹ نیو، اٹ از جسٹ اے کنٹینیوس پروسیس۔ فارم بدل گیا ہے، یہ دوسری شکل میں آیا ہے سامنے، لیکن ڈسرپشن سیم ہے کہ ان کو دوسرے علاقوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جیسے ہم کئی علاقے جن کا ہم نام مینشن نہیں کریں گے، لیکن بحثیت سجاد لون کا رد عمل کیا رہے گا؟ نہیں، دیکھیے اوور آل جموں کشمیر میں پچھلے میں بتاؤں گا 2019 سے ہی جو عوامی رائے ہے وہ تو بیک فٹ پر ہے، ان کا کوئی سنتا نہیں ہے۔ اب یہ ایک ڈیلیمیٹیشن کمیشن تھا، ڈیلیمیٹیشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوتی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا انہیں کیا کیا ہے۔ عام آپ دیکھیے لوگ ناخوش ہیں، چاروں طرف ناخوش ہیں، اور میں بولا کہ اٹس این ایکٹ آف، یہ ڈسرپٹرز بن گئے ہیں کہ ڈسرپٹ کرو، پولیٹیکل سسٹم کو ڈسرپٹ کرو، جو پرانے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ڈسرپٹ کرو، جو ادارے ہیں، تو ڈسرپشن ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم وکٹم رہے ہیں، پیپلز کانفرنس وکٹم رہی ہے پرانے ڈیلیمیٹیشن کمیشنز کی۔ یہ ظلم آج کا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو۔ یہ ظلم آج کا نہیں ہے، ہم یہ ظلم چوتھی بار دیکھ رہے ہیں، باقی پہلی بار دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے خلاف یہ ظلم ہوا ہے۔ میرے فادر لڑتے تھے، آپ بلیو نہیں کرو گے کیا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ علاقے ابھی بھی، اب آج وہ علاقے پھر بھی کسی اور جگہ گئے تو ووٹ نے ہمیں دیا۔ نہ پچھلے ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے پولیٹیکل ریئلٹی چینج ہوئی، نہ آج کے ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے کوئی ریئلٹی چینج ہونے والی ہے۔ یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جن کو لگتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن حدیں چینج کرنے سے، باؤنڈری چینج کرنے سے پولیٹیکل ریئلٹی چینج ہوگی، وہ چینج نہیں ہوگی۔ یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کی ہوتی ہیں، ان پہ کوئی اثر پڑے گا ان چیزوں سے؟ نہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے، جہاں فرد کا ووٹ ہوگا وہاں پرابلم پڑے گی، جہاں پارٹی کا ووٹ ہوگا ادھر کوئی پرابلم نہیں پڑے گی۔ بٹ جو بگر میسیج ہے ڈسرپٹرز کے لیے کہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، ہمیں دیکھیے سب سے بڑا ایگزامپل پیپلز کانفرنس کا، چھوٹی سی پارٹی تھی، ادھر سے ہی شروع ہوئی تھی، ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے لے کر کیا کیا نہیں کیا، لیکن وی آر اسٹل الائیو، آج ہے نا ہم۔ تو نہیں ہوتا ہے کچھ، شارٹ رن میں کچھ ہوتا ہے، لانگ رن میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وقت میں پیپلز کانفرنس کے ساتھ ایسا ہوا جب ڈیلیمیٹیشن ہوئی، دیکھیے ڈیلیمیٹیشن کبھی بھی یہاں فیئر نہیں ہوئی ہے، نیور ایور۔ پیپل شوڈ نو واٹ ہیپن ان دا پاسٹ، سیم۔ اور کشمیر کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کشمیر کو 1 دی اور 6 وہاں لی۔ جب سے ڈیلیمیٹیشن کی پروسیس شروع ہوئی ہے، یہی ڈس امپاورمنٹ، اب تو پارلیمنٹ میں بھی ڈس امپاورمنٹ کی ہے۔ بٹ ول اٹ چینج؟ نو، اٹ ول ناٹ چینج۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی چینج نہیں ہونے والا ہے۔ جو ڈسرپٹرز ہیں وہ ڈسرپٹ نہیں کرتے۔ ایس ایس پی سری نگر راکیش بلوال نے آج کہا کہ حال ہی میں ایک 24 سالہ لڑکی پر تیزاب پھینکنے کے معاملے میں چارج شیٹ اگلے 4 سے 5 دنوں میں داخل کر دی جائے گی۔ ایس ایس پی نے سری نگر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس کیس میں سخت ترین دفعات لاگو ہوں اور اس کیس کو جلد از جلد انجام تک پہنچایا جائے۔ ہماری بڑی زور شور سے ہو رہی ہے، نیکسٹ 4-5 ڈیز کے اندر ہماری چارج شیٹ ہو جائے گی فائل، اور ہم اسٹرانگیسٹ سیکشنز جو ہے جو بھی اپلیکیبل ہوتی ہے اس کیس میں ول انشور کہ اسٹرانگیسٹ وہ لگے اور جلدی سے جلدی
اس کیس کی چارج شیٹ فائل ہو جائے گی اور اس کے بعد وی ول ایکسپیکٹ دیٹ فرام پروسیکیوشن آلسو سائڈ کہ اس کیس کا فیصلہ جلدی سے جلدی آئے. وی انشور کی سپریم کورٹ گائیڈ لائنس جو ہیں ان کا پورا ہو اور کوئی بھی اوپن سیل آف ایسٹ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن ان سٹی. تو ہم اس کا خیال رکھیں گے آگے سے اور یہ انشور ہوگا کہ ایسٹ ہے. ڈی سی سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج کہا کہ کووڈ کیسز میں کمی کے چلتے ہمیں اپنی کوششوں کو کم نہیں کرنا چاہیے. ڈی سی نے ایس ایس پی سری نگر کے ساتھ کووڈ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا. ڈی سی نے کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل کرنے پر سری نگر کے رہائشیوں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ اسکول کھولنے کا فیصلہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کرے گی، تاہم 15 سال کی عمر کے طلباء کو ٹیکے لگوانے چاہیے. کووڈ کے کیسز میں کافی سگنیفیکنٹ نمایاں گراوٹ آئی ہے اور اس کے لیے میں تمام سری نگر والوں کا، آپ میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہے تمام میڈیا والوں نے اس میسیج کو کافی عام کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ کسی مارکیٹ میں دیکھیں آپ یا جہاں بھی گیدرنگ تھی وہاں ہر کسی نے ماسک پہنا ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ تھرڈ ویو میں جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ تھی کہ 4000 کیس پر ڈے آئیں گے، لیکن تمام ان پریڈکشنز کو ہمارے سری نگر والوں نے غلط ثابت کر دیا. ہم بالکل نہیں سمجھے کہ بس اب کیسز کم ہو گئے ہیں تو اب ہم ماسک چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اور زیادہ اسٹرکٹلی کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر فالو کرنا ہے. سری نگر میونسپل کارپوریشن میں ہی کورونا گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. آفس میں کووڈ گائیڈ لائنز کی سنگین خلاف ورزی دیکھی جا رہی ہے. میونسپل کمشنر سری نگر کے دفتر کے نیچے لوگوں کو ماسک کے بغیر گھومتے ہوئے دیکھا گیا. ایس ایم سی کے افسران کبھی کسی بھی کام کے لیے ایس ایم سی آفس جانے والے لوگ یا یہاں تک کہ کارپوریٹرز کو یا تو ماسک کے بغیر یا ماسک تھوڑیوں پر پہنے ہوئے دیکھا گیا. نیوز 18 اردو کے کیمرے میں قید کی گئی ایک خلاف ورزی یہ تھی کہ لوگ کھلے عام سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دکھائی دیے، جو کہ جی اے ڈی کے مقرر کردہ آفس پروٹوکول کی کھلی خلاف ورزی ہے. جب ایس ایم سی کمشنر اطہر امیر خان کے نوٹس میں اس خلاف ورزی کو لایا گیا تو انہوں نے فوری طور پر مین گیٹ پر موجود سیکیورٹی کو گیٹ پر سگریٹ اور ماچس کے ڈبوں کو بند کرنے کا حکم دیا. نوٹس یہاں خان صاحب کی کہ ہم کافی دیر سے یہاں ویٹ کر رہے تھے نیچے، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کووڈ گائیڈ لائنز کا فالو نہیں کیا جاتا پوری طرح. ہم نے دیکھا لوگ اکثر ماسک کے بغیر آتے ہیں، یہاں پہ نیچے بھی گھوم رہے تھے اور اسموکنگ بھی دھڑلے سے ہو رہی ہے اس احاطے میں. اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں کیا آپ؟ کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ماسک پہنیں، کلیئر کٹ انسٹرکشن دیٹ ماسک ہیز ٹو بی وورن بائی جو بھی یہاں پہ اندر آ جاتا ہے. اس آفس، میرے آفس میں بھی نو بڈی از الاؤڈ وداؤٹ اے ماسک. that goes without saying. اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ بھی پبلک ایریا پہ smoking is not allowed, if somebody has been smoking we'll take 100% action against them. that goes وہ تو that is without any اس میں تو کوئی. زوری گنڈ بڈگام کے لوگوں نے انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ گاؤں کے 70% لوگوں کی اراضی ریکارڈز دوسرے افراد کے نام ہوئی ہے. اس سلسلے میں آج علاقے کے لوگوں نے احتجاج کیا اور انصاف کے لیے نعرے بازی کی. لوگوں کا کہنا ہے کہ نئے اراضی سیٹلمنٹ کے تحت ان کی اراضی دوسرے افراد کے نام ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بھی افراد کے نام اراضی ریکارڈز ہوئے ہیں جو برسوں قبل فوت ہوئے ہیں. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ وہ بار بار متعلقہ حکام کے پاس جاتے ہیں مگر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. گاؤں کے سرپنچ اور دیگر افراد کے مطابق سرکار لینڈ ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات تو کر رہی ہے، مگر جب زمینی سطح پر ایسے حالات ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے نمائندے عابد حسین نے تحصیلدار بڈگام کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا تو انہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے گریز کیا، تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس معاملے پر غور کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کسی کو بھی ایسی مشکلات ہیں وہ ان کے دفتر آ کر مسئلے کا ازالہ کریں. 2007-8 میں جو بندوبست ہوا ہے ہمارے گاؤں کا، سارے اس بڈگام ایریا کا، تو ٹوٹلی ہمارا جو سیٹلمنٹ ہے وہ بالکل خراب ہے. دیکھیے کسی کا نام خراب ہے اور کسی کی زمین نہیں ہے، کسی کی زمین کم آئی ہوئی ہے اور کسی کی گاہ چڑھائی میں ہوئی ہے، اور ٹوٹلی جو ہمارا یہاں جو بندوبست ہوا وہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کے جو افسران اس ٹائم آئے تھے جو سیٹلمنٹ انہوں نے کیا ہے وہ بالکل خراب ہے. کم سے کم تو 75% جو ریکارڈ ہمارا ابھی زوری گنڈ کا وہ بالکل خراب ہے. پتہ نہیں کیا ہو اس کو. تو اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ سرکار سے ہماری یہی ریکویسٹ کہ اس کو ٹھیک کر دے.
लेकिन उसके बारे में ये लोग बोलते हैं ये दे दो वो दे दो, इतने पैसे हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे। 2008 में सेटलमेंट गो यह ब्रो सेटलमेंट सो बड़ बेहतरीन क्या अगर कंस जमीन 10 कनाल या 5 कनाल तम पन्नस पितरात किस नावस मज वो 2008 में सेटलमेंट गो तम वही पन्नस पितरात किस नावस मज क्या पट वरिस अ प्रॉब्लम ये दूर ग तम सह तमिस 2 नफरन थवान योर गांव तमिस पत प्रॉब्लम सारनी 60%। टंगमर्ग में वाक़ एसडीपीओ ऑफिस में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। 2 मंजिला इमारत जिसमें एसडीडीपीओ टंगमर्ग और डीवाईएसपी ऑपरेशंस का दफ्तर भी है, आग की हौलनाक वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हो गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के 2 स्टेशनों से अमला मशीनरी के साथ जय वारदात पर पहुंचा। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। बताया जाता है कि इमारत की दूसरी मंजिल से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई। उधर एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट ने टंगमर्ग का दौरा किया और आग से हुए नुकसानात का जायजा लिया। मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ विंटर सीजन जो हमारी अक्सर इस तरीके ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ पोर्शन जो इसका है वो इसी वजह से बच गया कि कुछ जगह पे जहाँ पैनलिंग नहीं थी या जहाँ पे बाकी वुडन वर्क नहीं था, उस वजह से जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसको बचा पाया। और बाकी चीज़ों में मुझे लगता है अब इसमें फर्दर कार्रवाई जो है वो की जाएगी और तफ्तीश भी की जाएगी प्रॉपर फोरेंसिक। अभी हम असेस कर रहे हैं डैमेज कि क्या क्या नुकसान हुआ है, कुछ रिकॉर्ड का, कुछ जो हमारे बाकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका नुकसान ज़रूर हुआ है और हम उसको असेस करेंगे और एक प्रॉपर रिपोर्ट। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस नगमा अरविंद ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हालात को फर्कावाराना बनाकर लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। आज जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हिजाब में मलबूस लड़की से कुछ नौजवानों की तरफ से बदतमीजी इसी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास तरक्याती महाज पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इंतखाबी फायदे के लिए सूरत हाल को पोलराइज करने के लिए इस तरह के तरीकों का सहारा ले रही है। के पास डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं होगा या डेवलपमेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो इसी तरह की डाइवर्शनरी टैक्टिक्स कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या ये बेटी के एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो इसीलिए इन सब चीज़ों को डाइवर्शनरी टैक्टिक्स को हमें नहीं देखना चाहिए और महिलाओं के ऊपर अगर इस तरीके का प्रहार हो रहा है तो हमें एकजुट होकर खड़ी होकर एक झुंड आती है और एक महिला को परेशान करती है और मैं नहीं समझती कि इस तरीके की गुंडागर्दी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की अबूरी मुसव्वदा रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई है, इसके मुतालिक नगमा अरविंद ने कहा कि इसके तमाम आम लोग मुखालफत कर रहे हैं। पिछले कुछ साल से कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि नया कश्मीर बनेगा और डेवलपमेंट होगा, तो वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने डीलिमिटेशन का इन्होंने अनाउंस किया है वो भी अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा बाहर निकली है रिपोर्ट। पता चल रहा है कि जिन्होंने भी वो देखा है कि किस तरह से बदलाव हुआ है, परिसीमन किस तरह से बदली है गई है, उस चीज़ से लोग नाखुश हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने लिए कमाने और यूटी के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस समत में एक कदम के तौर पर आज जम्मू में एक ऐप लॉन्च किया गया जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों के सारिफिन को अशिया की फराहमी के अलावा आम लोगों के पार्सल की तरसील का काम करेगा। इस ऐप को सनत और तिजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ठाकुर ने लॉन्च किया। ये ऐप कारोबार को इस काबिल बनाएगी कि वो अपनी मसनूआत को अपने आउटलेट से उठा सके और अपने सारिफिन को तेज़ रफ्तारी से डिलीवर कर सके। कंपनी के एमडी आबिद ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस ऐप को पहले ही 900 कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं और जम्मू में इसे लॉन्च करने का मकसद इस खित्ते के ताजरों और आम लोगों को भी खिदमात फराहम करना है। आरपी ठाकुर ने नौजवान सनतकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नए स्टार्टअप्स में मुज़मिर है।
हमारे साथ अभी 900 से ज़्यादा बिजनेस काम कर रहे हैं, तो अगर उनका देखा जाए ये एक उनके लिए लाइफ लाइन है और ऐसी चीज़ है जिससे उनको रोज़गार मिलता है, या नए बिजनेस जॉब इंटरनेट बेस्ड बिजनेस आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लॉजिस्टिक, मतलब उन्होंने तो सेल किया, डिलीवर कैसे करेंगे। सो ये एक सोल्यूशन है उनके लिए, एक बिज़नेस के लिए और एक कस्टमर के लिए भी, उनको कैसे डिलीवरी मिलेगी, ऐप ही सब कुछ घर बैठ के। इमेजिन आपको कुछ सेंड करना हो, आपको पहले सर्च करना है कहाँ, फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लगती है वहाँ पे पहुँचने में, फिर उसके बाद आपको देना पड़ता है। यहाँ पे बंदा आता है, डिलीवर करता है। सो एक तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए ये चीप पड़ता है उस केस से, क्योंकि टाइम भी बच जाता है और अमाउंट भी बच जाता है। कि हमारे और यंगस्टर्स इससे इंस्पायर हो सकें, वो स्टार्टअप मोड में चलें, यही फ्यूचर है। सरकारी नौकरियां फ्यूचर नहीं होती हैं, इसी से इकॉनमी बढ़ेगी। इंडिया आजकल यूनिकॉर्न के मामले में काफ़ी आगे बढ़ गया है, सबसे हाईएस्ट यूनिकॉर्न यहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है यूनिकॉर्न शेप में जाना जरूरी है, बिकॉज ये नई कंपनी बनाएंगे, वैल्यूएशन होगी और नई प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे, यही हमारा भविष्य है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कश्मीर डिवीजन के 12वीं जमात के नताज में आर्ट्स स्ट्रीम में जिला पुलवामा के छानपुरा बेलू से ताल्लुक रखने वाले सोहेल अहमद डार ने पहली पोजीशन हासिल की है। उनके घर वालों के अलावा पूरे इलाके में काफ़ी खुशी का माहौल पैदा हो गया है। सोहेल का मानना है कि मेहनत और लगन से कोई भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपनी कामयाबी का सहरा अपने वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा के सर बांधा है। सोहेल ने आर्ट्स में 496 नंबरात लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। सोहेल अब इलाके के दूसरे नौजवानों के लिए मशाल राह बन गया है। कामयाबी जो मेरी असली कामयाबी है, इस कामयाबी के असल हकदार तो मेरे असातिज़ा साहिबान ही हैं। फ्यूचर प्लान मेरा यही रहेगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं उर्दू अदब जो है, उर्दू अदब के लिए मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और जम्मू कश्मीर में मैं इस उर्दू ज़बान को बहुत ही फ़रोग तरक्की के राह पर गामज़न करना चाहता हूँ के लिए। और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए बाइस फ़ख्र है कि जो हमारे होनहार तालिब इल्म है, इन्होंने न सिर्फ हमारे गाँव का बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो रोशन किया है। आज कोर मीन बचन पगह गस कर हमसाय मोन या भी बाकी अमिस स्टूडेंट पढ़ान तम तन कर रज कामयाबी हासिल अता यथ गामस मज सो रौनकी यम गाम। नईबुगतराल के रहने वाले फुरकान ने 12वीं जमात के इम्तिहानात में साइंस स्ट्रीम में 496 नंबरात हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है। फुरकान के वालिद मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि वो काफ़ी खुश हैं कि उनके बेटे ने मेहनत की कमाई की कदर की है। उन्होंने बाकी बच्चों से भी माँ बाप की कदर और फरमाबरदारी करने की अपील की है। ज़रूरी इंसान को तो खुशी होती है कि मतलब अगर हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और उसी की वजह से हमें भी खुशी होती है। हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो ज़रूरी खुशी होती है। इससे अल्लाह ताला के बाद तो मैं इन्हीं का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मजदूरी करके मुझे इतना पढ़ाया, बचपन से ही आज तक पढ़ाया। किसी चीज़ की कमी वमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी, हमेशा अच्छे से पढ़ाया। कोई भी फैसिलिटी ज़रूरत होती है पढ़ाई के लिए बिल्कुल मुहैया रखी हमारी। कस्बा पामपुर से ताल्लुक़ रखने वाली ऐमन अमीन ने भी 12वीं जमात के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की और 496 मार्क्स हासिल किए, जिस पर इलाके के लोगों और वालिदैन में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। ऐमन ने बताया कि उन्होंने सख्त मेहनत करके ये कामयाबी हासिल की। उन्होंने असातिज़ा और स्कूल इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया है। Glamorous success. I want to first of all thanks to Allah, many thanks for being very grateful for blessing me, and after that of course my teachers who worked so hard in making us clear our every concept, and then my parents and my sister also who guided me at every step, at every small step. She guided me what to do and what not to do, and of course my uncle, they have also been our backbone like our father and mother. 12वीं जमात के नताज के बाद जहां पोजीशन हासिल करने वाले तलबा का चर्चा खूब किया जाता है, तो वहीं जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों की कामयाबी पर उनकी सराहना भी ज़रूर करनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को मज़ीद हौसला मिले। मलाबुचन मागाम से ताल्लुक़ रखने वाली यास्मीना शफी नामी लड़की ने जिस्मानी तौर माजूर होने के बावजूद 12वीं जमात के मेडिकल स्ट्रीम के इम्तिहान में 429 नंबरात हासिल किए हैं। यास्मीना अपने टांगों से चल नहीं पाती, वालिदैन इसका सहारा बने हुए हैं। जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ होने के बावजूद यास्मीना ने हिम्मत नहीं हारी। यास्मीना का कहना है कि
وہ نہیں سمجھتی کہ وہ جسمانی طور پر معذور ہے، بلکہ وہ عام لوگوں کے شانہ بشانہ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یاسمینہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے والدین اور اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ جی آج میں بہت خوش ہوں، کل ہمارے جو ریزلٹس ہیں بہت اچھے آئے ہیں اور میں 429 مارکس کے پاس ہوئی ہوں، اور میں فزیکلی ڈسیبلڈ ہوں، ایسا مطلب لوگ سمجھتے ہیں، بٹ میں ایسے فزیکلی ڈسیبلڈ خود کو نہیں سمجھتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ مطلب جس میں صلاحیت ہوتی ہے وہ سوچے، جو اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، مطلب پہچان سکتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ ڈسیبلڈ نہیں ہے۔ بہت ساری مشکلات آئی ہیں میرے پیرنٹس کو، مطلب پھر بھی میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے ٹیچرز کا جو ہمیں آن لائن پڑھاتے تھے، جو ہمیں آف لائن کلاسز میں پڑھاتے تھے۔ آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں میں فزیکلی مطلب چل نہیں سکتی۔ ان لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے جو فزیکلی فٹ ہے ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے، ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کہیں بھی اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جہاں جائے وہاں اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنا ٹائم ایسے ویسٹ نہ کرے، جتنا ہو سکے اتنا وہ پڑھے اور آگے جائے۔ بارہمولہ ضلع کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور نے 12ویں جماعت میں 11 پوزیشن حاصل کر کے زون کے سرکاری اسکولوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نتائج کے مطابق اسکول کے طلباء نے سائنس اسٹریم میں 10 اور آرٹس اسٹریم میں 1 پوزیشن حاصل کی ہے۔ سائنس اسٹریم میں سولیہ شوکت نے 4تھی، خوشبو شوکت اور رومان سلطان نے 6ٹھی پوزیشن حاصل کی، جبکہ عالیہ اعجاز، بسمہ راشد، سعدیہ اشرف اور نسرینہ شمس نے 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ آج اسکول میں منعقدہ ایک تقریب میں اسکول کے اساتذہ اور پرنسپل نے ہونہار طلباء کو مبارکباد پیش کی اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جی پہلے میں اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھے ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، بہت ہی زیادہ موٹیویٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے ٹیچرز کا، اسپیشلی میرے جو فزکس ٹیچر تھے وسیم سر، انہوں نے فرام دی فرسٹ ڈے ٹو دی لاسٹ ڈے ہم پہ بہت زیادہ محنت کی ہے، میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ڈرنکنگ واٹر فیسلٹیز ہیں، سینیٹائزیشن ہے، ویل وینٹیلیٹڈ کلاس رومز ہیں، ہیٹنگ ارینجمنٹ ہے، تو اسکول بلڈنگز بہت اچھی بنی ہے، تو اس سے بھی امپیکٹ پڑا ہے، جو پیرنٹس ہے ان پہ امپیکٹ پڑا ہے کہ اب تمام پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولز کی طرف بھیجے۔ دوسری بات ہے کہ اب پیرنٹس بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سکولز ہے یہاں پر ویل کوالیفائڈ اسٹاف ہوتا ہے، جو کہ آفٹر پراپر اسکریننگ کے بعد گورنمنٹ میں آتے ہیں، پراپر ایگزامینیشن کے وہ جب کوالیفائی کرتے ہیں تب جا کے وہ ٹیچرز بنتے ہیں۔ جے کے بوس کے 12ویں کلاس کے نتائج میں 2 لڑکیوں نے 3ری اور 4تھی پوزیشن حاصل کر کے ضلع گاندربل کا نام روشن کیا۔ آرمپورہ کے رہنے والے شاہ روبیکا نے سائنس اسٹریم میں 497 نمبر لے کر 3ری پوزیشن حاصل کی، جبکہ بانڈی باغ کے مہوش مشتاق نے 496 نمبر لے کر 4تھی پوزیشن حاصل کی۔ ان طالبات کی کامیابی نے نہ صرف ان کے والدین بلکہ تعلیمی ادارے کا نام بھی روشن کیا ہے۔ ان طالبات نے اسکول کے اساتذہ کی رہنمائی اور تعاون کے لیے والدین کا شکریہ ادا کیا۔ ان بچیوں کے اعزاز میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں پرنسپل کی جانب سے ہر ایک کو 10,000 روپے کا نقد انعام اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے کیونکہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اینڈ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آئی وڈ سے کہ کریڈٹ میں دوں گی ٹیچرس کو، اپنے اسٹاف، اسکول کو، مینجمنٹ کو، جنہوں نے ان کو ڈائریکٹ کیا ٹو گائیڈ اس، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ فار اس، کیونکہ آن لائن سارا 2 سال کنٹینیو آن لائن رہا اینڈ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا۔ اینڈ تھرڈ میں کریڈٹ دوں گی اپنی فیملی کو، they were very supportive during this whole time and particularly my brother, he was always there for me. اس میں میں نے 496 مارکس سکیور کیے ہیں اور پوری ویلی میں جو ہے میری 4th پوزیشن آئی ہے۔ اسٹڈی جو ہے ہماری آن لائن میں شفٹ ہو گئی تھی، تو میں کوئی پرٹیکولر ٹائم نہیں بولوں گی کہ اس ٹائم تک میں پڑھتی تھی، اس ٹائم تک جتنا ہمیں آن لائن میں پڑھاتے تھے دن کا اتنا جب تک کور ہوتا تھا، جتنا بھی وہ ٹائم لیتا اتنا میں کرتی تھی۔ بحری حالہ شوپیاں کی خوشبو محی الدین نے اپنے بیمار والد کو فخر اور شہرت سے روشناس کرایا۔ خوشبو نے 12ویں جماعت کے سائنس اسٹریم میں 500 میں سے 493 نمبر حاصل کیے ہیں، وہ ضلع کی دوسری ٹاپر ہیں۔ خوشبو کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے والد کینسر جیسے مرض سے متاثر ہیں۔ ایک پرائیویٹ کوچنگ سینٹر نے اسے مفت تعلیم فراہم کی۔ خوشبو نے اپنی کامیابی کے لیے اپنے والدین، اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔
रैली में 7th पोजीशन मुझे मिली है एंड दिस इज़ ऑल थैंक्स टू पहले तो ऑलमाइटी अल्लाह देन माय पेरेंट्स एंड उसके बाद टीचर्स को जिन्होंने मुझे गाइड किया, ट्रैक दिखाया एंड उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैंने हार्ड वर्क की, कंसिस्टेंसी की, टीचर्स ने मुझ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की एंड रिजल्ट आज आपके सामने है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके तुलेल में किलशे हायर सेकेंडरी स्कूल में कल जारी किए गए 12वीं जमात के रेगुलर नतायज 0 निकले, जिसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इस हायर सेकेंडरी स्कूल से 5 बच्चे 12वीं के इम्तिहान में शामिल हुए थे, तहम कोई भी तालिब इल्म कामयाब न हो सका। स्कूल के मायूस कुन नतायज के बाद चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा ने कहा कि पढ़ाई के तई बच्चों की कम दिलचस्पी की वजह से खराब नतायज निकले, लेकिन आज इलाके के सरपंच निसार अहमद लोन ने इस खराब कारकर्दगी के लिए महकमे तालीम को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि इस हायर सेकेंडरी स्कूल में मिडिल स्कूल का अमला बच्चों को पढ़ाता है और आज तक इस हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर तैनात नहीं किए गए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज में 7 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए सिर्फ 1 प्रिंसिपल है और इन हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को कई साल से लेक्चर्स दस्तियाब नहीं हैं। सबसे पहले मैं एजुकेशन के जो सीओ साहब का कुछ जो एक न्यूज़ चैनल पे सुनने में आया कि उन्होंने जो कहा है कि बच्चों की नाकामी है, बच्चों की कमज़ोरी है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि अपनी कमज़ोरी को छुपा के हमारे बच्चों पे थोपना, बच्चों पे ये गलती निकालना, ये बड़ी अफसोस की बात है। जो हायर सेकेंडरी उसको मेडल का स्टाफ जो है वो चला रहा है। सिर्फ वहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि हाई स्कूल का एक मास्टर ग्रेड का एक ही मास्टर साहब वहाँ पे मौजूद है, जो पिछले कम से कम 12-14 सालों से वहाँ पे तैनात है। वहाँ पे लेक्चरर नहीं है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर जूनियर्स के लिए पहली नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। कश्मीर को हाल ही में मेजबानी के हुकूक दिए गए मकामी खिलाड़ी इस मेगा इवेंट के लिए पुरजोश हैं, जिसमें मुल्क भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता डल झील एक बार फिर वाटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए तैयार है, जिसमें मकामी खिलाड़ी ठंडे मौसम के बावजूद मशक कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये खिलाड़ी अपनी रूटीन प्रैक्टिस के साथ आइंदा सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2022 की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जेके रोइंग एसोसिएशन को मेजबानी के हुकूक दिए हैं। यह इवेंट डल झील में मुनाकिद होगा और इसमें मुल्क की 20 से ज्यादा रियासतों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। अगरचे इस तकरीब की तारीखों का अभी तक फैसला नहीं किया गया है, ताहम मुमकिना तौर पर मकाम नेहरू पार्क और SKICC का बैकलॉन होगा। इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर ने इसे जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स में एक तारीखी कदम करार दिया है। आपने देखा होगा जो पिछले 3-4 सालों से एक रेवोल्यूशन आया वाटर स्पोर्ट्स में, कायाकिंग हो या रोइंग हो, आप देख लीजिए वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट यहाँ पर आया। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से जैसे रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अलॉट किया, ये पहली बार ये नेशनल जो हो रहा है, दिस इवेंट विल बी अ प्रेस्टिजियस इवेंट। रोइंग जहाँ तक सवाल है, कायाकिंग के इवेंट्स होते रहे हैं यहाँ पर, मगर ये पहला इवेंट हो रहा है। इससे जैसे सब जूनियर लेवल पे हमें मिला, इससे हमारे खिलाड़ियों को बड़ा बूस्ट मिलेगा अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और ये जो गवर्नमेंट ने एक रेवोल्यूशन लाया इस वाटर स्पोर्ट्स में, चाहे वो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट हो, आपने देखा होगा रोइंग बोट हमारे सामने है, ये वर्ल्ड का बेस्ट बोट है। तो इससे क्या होगा कि हमारे खिलाड़ियों को बड़ा बूस्ट मिलेगा। विद दिस चैंपियनशिप हमारे खिलाड़ी नेशनली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में पहले वाटर स्पोर्ट्स का बुनियादी ढांचा बहुत खराब था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जाती दिलचस्पी से इस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बेहतरी आई है। नए हाईटेक वाटर स्पोर्ट्स आलात बशमूल रोइंग बोट्स और कयाकिंग बोट्स पिछले साल लाए गए हैं। हिंदुस्तान की रोइंग फेडरेशन ने 2 बैनुल अक़वामी कोच भी भेजे हैं, जिन्होंने मकामी खिलाड़ियों को तरबियत दी। खिलाड़ी इन दिनों जी जान से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी मामूल की तरबियत के अलावा वो आइंदा सब जूनियर रोइंग चैंपियनशिप के बारे में भी पुरुम्मीद हैं। उनका कहना है कि इस तरह की तकरीब उन्हें वाटर स्पोर्ट्स के नए दौर से रोशनास कराएगी। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, यहाँ पे पहली बार रोइंग नेशनल हो रहा है, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
इंशाल्लाह हम उसमें मेडल लाएंगे. हाँ, उससे हमें एक्सपोजर मिलेगा. जो बाहर के कोचेस यहाँ पे आएंगे हमें उससे बहुत ही ब्रीफ होगा इस स्पोर्ट्स के बारे में. अभी हमें उम्मीद है हम ओलंपिक और इंटरनेशनल में अपना जगह बनाएंगे. पहली बार नेशनल करवाया, ऐसे हमारे नए जो यंगस्टर्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा और उसके साथ साथ जो हमारे पास अभी टैलेंट है जैसे कि सब जूनियर्स है उनको मौका मिलेगा आगे अपना परफॉर्मेंस दिखाने का. As you know, we have a water sports in Kashmir. There's dragon boat, kayaking, canoeing, and now it's rowing. We're going to have a national here, and I hope we can really win. It's a very good experience. We share our knowledge with all over India and others. It's going to be like, I am so excited. We are all so excited to be a part of the national, to participate in that, because it's a very big event and I hope we can win gold and excel in international. जम्मू कश्मीर रोइंग फेडरेशन को उम्मीद है कि मौजूदा तैयारियों और घरेलू मैदान का उन्हें फायदा मिलेगा और खिलाड़ी आइंदा चैंपियनशिप में कई तमगे जीतेंगे, जिसके बाद खिलाड़ी ओलंपिक्स जैसे बैनुल अक़वामी मुकाबलों में भी हिस्सा ले सकेंगे. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की रिपोर्ट. पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के हवाले से जो भी फैसले आ रहे हैं अफसोसनाक और हैरान कुन है. अब्दुल गनी वकील ने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट सामने आने से ऐसा लग रहा है कि मरकजी सरकार एक मनसूबाबंद पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के समाजी ताने बाने को तहस नहस करने की कोशिश कर रही है. रिलीफ और रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता मजदूरों ने आज जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया. वो अपनी ज़ेर इल्तबा तनख्वाहों के इजरा का मुतालबा कर रहे हैं. डेली वेजर्स के मुताबिक वो गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों से तंजीम के साथ काम कर रहे हैं. उनके मुताबिक महकमे ख़जाना ने गुज़श्ता साल मार्च से उनकी उजरत रोक दी थी. उनका कहना है कि इसके नतीजे में माली बहरान पैदा हो गया है और वो अपने ख़ानदान की रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने LG मनोज सिन्हा से मुदाखलत करने की अपील की ताकि उनकी ज़ेर इल्तबा उजरत जल्द अज जल्द जारी की जा सके. गवर्नर साहब से भी अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिलीज़ होनी चाहिए. आगे शिवरात्रि भी आ रही है, लेकिन हमारे घरों में आजकल ऐसा चल रहा है जैसे मातम चल रहा है, क्यों हमारे पास पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं. यहाँ तक आने के लिए हमारे पास किराया भी नहीं था. मुश्किल से हम आज यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया कि हमारी आवाज़ हायर लेवल तक पहुँचनी चाहिए. इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा और इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जानिब से आज यूनिवर्सिटी के तलबा को हुनरमंद बनाने के लिए सिलसिले में MOU पर दस्तखत किए गए. इस सिलसिले में सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशु के अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इख्तराई मरकज़ शोबे के HOD और सिडको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदर हाजी मुजफ्फर अहमद के अलावा एसोसिएशन के दीगर मेंबरान मौजूद थे. इस मुआहदे का मकसद यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स को इंडस्ट्रियल स्टेट में तरबियत फराहम करना है. कोर्सेज ऐसे रिशेप करने हैं जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट. इसी तरह जो इंडस्ट्री की भी जो इश्यूज़ है, जैसे गिविंग द राइट स्किल्स और अपग्रेडिंग द स्किल्स ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज़, तो उसके लिए भी IUST में जितने भी कैपेबिलिटीज़ है, जितने भी पोटेंशियल सेंटर्स है हमारे पास स्किलिंग के या इनोवेशन के या इंक्यूबेशन के, सो दे विल बी पार्ट ऑफ दैट. और ट्रेनिंग देंगे उनको अपने यूनिट्स में वहाँ, क्योंकि कॉलेज में तो ज़्यादा, जैसे हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कहा कि कॉलेज में तो ज़्यादा थ्योरी पे ही होता है स्ट्रेस, प्रैक्टिकल्स पे नहीं होता है. तो इंशाल्लाह जो हमने ये मूव साइन किया हुआ है, इससे क्या है वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनको हम यहाँ ट्रेनिंग्स देंगे. 2 दिन कबल वाघा करगिल के गांव में अक़लियती फ़िरक़े की एक लड़की के अगवा मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हक़ाइक़ पेश किए. पुलिस के मुताबिक तीनों मुलज़मीन को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी तिब्बी जांच कराई गई और अदालत में भी पेश किया गया था. पुलिस के मुताबिक तिब्बी रिपोर्ट का अभी इंतजार है. पुलिस ने वाज़ेह किया कि असली मुलज़िम और लड़की दोनों नाबालिग हैं. पुलिस ने वाज़ेह किया कि पुलिस बारीकी से मामले की जाँच कर रही है. बताना चाहूँगा कि पुलिस को जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो मोटो केस हम रजिस्टर करते हैं.
उसके बाद हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। हम लड़की को इमीडिएटली उसके पहले पेरेंट्स को बुला के उसके हवाले करते हैं, उनके बाद प्रॉपरली आराम से तरीके से लड़की का मेडिकल करवाते हैं। वहाँ डॉक्टर्स ने भी उनको काफ़ी अच्छे तरीके से काउंसलिंग की। हमारा जो टाटा इंस्टीट्यूट का टिस का जो काउंसलिंग वाली वो है टीम है, वो भी उसको मदद करती है। हमारा वुमेन सेल भी उस वक्त हम साथ में लगाते हैं। तो लड़की की काउंसलिंग में या ऐसी चीज़ में किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी है। जो लड़के हैं वो इमीडिएटली अरेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट डे जब पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में हम ले जाते हैं लड़कों को, तो जो 2 लड़के हैं जो बड़े हैं उनको कोर्ट के थ्रू जो है पुलिस कस्टडी में रिमांड मिलती है 5 दिन की। जो कि जुवेनाइल है उसको, क्योंकि यहाँ शायद जुवेनाइल होम नहीं है या वट एवर रीजन कोर्ट वुड हैव थॉट, तो कोर्ट की तरफ से उसको बेल मिली है, जिसको भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश की गई कि पुलिस ने उसको छोड़ा है। पुलिस किसी को ऐसे क्यों छोड़ेगी? जब हमारे पास लॉ है, डिफाइंड है, तो हम अपने कानून के तरीके से चलते हैं। लद्दाख के एडीजीपी सतीश खंद्रे ने आज यूसीआई और सीएफआई के साथ एक मीटिंग की सदारत की और सितंबर में लेह में होने वाले वर्ल्ड कप के इनेकाद के बारे में जानकारी दी। यूटी इंतजामिया 4 सितंबर को लेह में पहला यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप मुनक्किद कर रही है। हिंदुस्तान में अपनी नौयत का यह पहला वर्ल्ड कप होगा। लद्दाख पुलिस ने आज यूसीआई और सीएफआई के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। चैंपियनशिप में दुनिया के टॉप साइकिलिस्ट और कौमी साइकिलिस्ट शिरकत करेंगे। इसके अलावा मकामी नौजवानों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। National cyclists will also participate, and to make this event kind of participative, we will organize another cycling event in association with this bike, mountain bike World Cup, in which anybody can participate. So we are working on that. So we will work out the schedule and all that, and then we will let you know. But the concept is that to take Leh to at the level where it is recognized all over the world as a ultimate cycling destination. काजीगुंड में उर्स पाक हजरत नूर शाह वली बगदादी नहायत ही तुज़को एहतशाम से मनाया गया। कोविड के तनाजुर में इस साल उर्स पाक को महदूद कर दिया गया। ताहम ज़ियारत पर शब-ख्वानी और दुरूद अस्कार की महफिल आरास्ता की गई। उलमा इकराम ने वादी में अमन अमान, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। साल भर यहाँ आते हैं, आज ज़्यादा ही आते हैं, लेकिन आज कोविड की वजह से ज़ायरीन कुछ कम ही आ रहे हैं। हम आए भी हैं और आते भी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि एसओपी का ख्याल रखना चाहिए। इसमें ये मास्क रखनी ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल करना और 2 गज या 3 गज की दूरी रखना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। यहाँ पे खसूसी दुआएं की जाती हैं और उन दुआओं का हमें उम्मीद है कि वो दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और रंग लाएंगे। और उसके अलावा इस साल का जहाँ तक ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमें जो है कोविड की वजह से बोला कि एसओपीज़ को फॉलो किया जाए और कम से कम तादाद जो है लोगों की आए। डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुखालफत में पुंछ के मेंधर सब डिवीजन के पंचायती नुमाइंदों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को बीजेपी की रिपोर्ट करार दिया। एहतजाजियों ने खित्ते पीर पंचाल के साथ नाइंसाफी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में उथल पुथल मचा रही है। गुजारिश करना चाहते हैं और डिलिमिटेशन कमीशन से कहना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन एक आजाद इदारा होना चाहिए था, जिसको पूरे इलाके के अंदर घूम करके सर्वे करके तमाम लोगों से पूछने के बाद, यहाँ के नुमाइंदगान से पूछने के बाद, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज से मशवरा करने के बाद ये इक़दाम करने चाहिए थे। जिला रामबन की तहसील पगलपरिस्तान हेडक्वार्टर खड़ाल में हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट मसवदे के खिलाफ एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। मीटिंग में मुकर्रीरीन ने पगलपरिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। इल्ज़ाम लगाया कि ड्राफ्ट के जरिए पगलपरिस्तान की यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाबिल कबूल है। इसके बाद एक एहतजाजी रैली भी अखड़ाल बाजार में निकाली गई।
जो मुझे लोग फीडबैक देते, मेरे पंच, सरपंच और पब्लिक, उनका यही मानना है कि हम इस रिपोर्ट को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो सरकारी चुनिंदा नुमाइंदे हैं ये मुस्तफी होकर सड़कों में आ जाएंगे। पोगल पड़िस्तान को आप पूरे तहसील को रामबन ले जाइए या एज इट इज जैसे बनहाल में वैसे रखिए, वरना हम सड़कों पे आते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे कि जब तक हम इंशाअल्लाह ताला जीते नहीं और पोगल पड़िस्तान जो पोगली जबान है जिसका अपना एक इतिहास है उसको कायम। प्रस्तुत से अगर हुकूमत ने ये बात हमारी नहीं मानी तो हम चाहते हैं कि इसको जमीनी सतह पे पूछा जाना चाहिए कि ये हवाई सर्विस से ये जो तकसीमकारी है हमें नामंजूर है। हमारी कम्युनिटी है, सबसे पहले हमारा पोगल पड़िस्तान का एक इतिहास है, हमारी यकजहती है, ये ताकत है पोगल पड़िस्तान की और इस ताकत का एहसास हम कराएंगे आज इस कमीशन को। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन के मुसव्वदे के मंजर आम पर आने के बाद बीएसपी के रियासती सदर सोमराज मजोत्रा ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने इस रिपोर्ट पर बीजेपी का असर बताया। उन्होंने नई हदबंदी के तहत कठुआ में नई असेंबली सीट से बीएसपी के वोट बैंक वाले इलाकों को अलग करने का इल्जाम लगाया। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना माइंड जो है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं किया, अपने मेहनत लोगों की बाउंड्रीज की जैसे करनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं की, बल्कि दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठ करके वो रिपोर्ट बनाई है। हम इनको दावे के साथ कहते हैं आप जहां मर्जी जैसा मर्जी करें, हम आपका जीना हराम कर देंगे, इलेक्शन आने दो, जहां जहां भी हमें बांटा गया है हम वहीं बैठ करके हमारे सिपाही जो हैं, बीएसपी का वर्कर जो है वो आपको इस तरह का सबक सिखाएगा। शोपियां में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बड़े पैमाने पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। चरक मोहल्ला मुजपथरे केलर में लोग कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां के लोगों को आज तक बिजली की सहूलत में असर नहीं हो सकी। पीडीडी शोपियां ने गुज़श्ता साल मज़कूरा इलाकों के लोगों से बिजली फराहम करने का वादा किया था, जो सिर्फ वादा ही साबित हुआ। लोगों का कहना है कि उन्हें बिजली के बगैर बिजली के बिल अदा करने पड़ते हैं। इलाके में सड़कें भी बेहद खस्ता हैं। लोगों ने इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। इस 21वीं सदी में भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई भी सड़क नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट की या किसी भी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, कोई भी स्कीम, किसी भी स्कीम का हम लोग फायदा नहीं उठा सकते हैं। हमारे साथ हम बदकिस्मती से यहाँ के पंच और सरपंच हैं, तो हुकूमत हमारी कोई भी बात आज तक सुनती नहीं है। हमारे लिए बिजली किसी गवर्नमेंट के पास नहीं निकली। आप खुद देखते हैं कोई पोल है, खासकर प्रॉपर मुजफ्फरपथरी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ मैं सरपंच गतिपुरा हल्के में आता हूँ और ये मेरा वार्ड 9 वार्ड आते हैं, इसमें हम प्रॉपर मैं बात करते हूँ। देख लो आप खुद, चड़कमार मोहल्ले हैं, कभी सड़क का हाल देख लो, खुद इस वक्त देखते हैं, बिजली का हाल देख लो, कोचों का हाल देख। अरुणाचल प्रदेश के कामयंग सेक्टर के ऊंचाई वाले हिस्से में बर्फानी तोदे खिसकने से फौज के 7 जवान शहीद हो गए। 7 जवानों में से 2 अखनूर के थे। अखनूर के मलाल गांव के रहने वाले शहीद विशाल शर्मा की शहादत की खबर सुनकर गांव में शोक का माहौल है। विशाल शर्मा एक काफ़ी होनहार बच्चा था। जब वो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आर्मी के टेस्ट के लिए मेरे पास आया, तो मैंने उसमें जो आर्मी के लिए जुनून, उस जज्बा देखा, वो बाकी बच्चों से अलग ही था। आर्मी के रिलेटेड बातें करना, आर्मी की ही जानकारी लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी के बारे में सोचना और करना, ये जज्बा उसमें काफ़ी ज़्यादा था। विशाल शर्मा एक अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था और माँ उसका बाप जो था वो पहले ही दुनिया से चल बसा है। और आज विशाल जी ने अपना उत्तरांचल में बर्फीले तूफान में अपनी शहादत दी है। मुझे इस चीज़ के लिए बहुत दुख भी है और बहुत गर्व भी है कि विशाल ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पुंछ के बनवंत सेक्टर में दरख्त से गिरकर हलाक हुए पोर्टर त्रिलोक कुमार बाली को फौज के ऑर्डिनेंस यूनिट के अफसरान ने ताज़ियत पेश की। इस मौके पर फौज ने महलूक के अहल खाना को इमदाद देते हुए हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई। इंडियन आर्मी हमारे घर पर आई है, सीओ साहब आए हैं, उन्होंने हमें फर्स्ट एड दी है, फाइनेंशियली दी है। वो उन्होंने हमें वादा किया है कि हम इनके बेटे का पूरा ध्यान रखेंगे, बेटियों का भी ध्यान रखेंगे। जो उनके फाइनेंशियली क्लेम बनता है हम जल्दी से जल्दी उनको मुहैया कराएंगे और किसी किस्म की ज़रूरत है हम पूरा ध्यान रखेंगे।
नौजवानों को अफवाज में शामिल होने की तरगीब देने और उन्हें जिंदगी के तरीक़ेकार के बारे में बसीरत फराहम करने के लिए फौज की राजपूत रेजिमेंट ने राजौरी जिले में दरहल में हथियारों का डिस्प्ले कैंप लगाया। इस कैंप में इलाके के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीडीसी चेयरपर्सन शमशाद चांद ने सब डिवीजन रामसू का दौरा किया। इस दौरान मीटिंग का इनेकाद डाक बंगला रामसू में किया गया। मीटिंग में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की और चेयरपर्सन को मसाइल से आगाह कर दिया, जिसमें मकामी लोगों को तामीराती कंपनियों में रोजगार से महरूम रखना, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी और मुआवजे की फराहमी को यकीनी बनाने, बाज़ाबातकारी जैसे मसाइल खास रहे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म और अलाउपुरा शोपियां का दौरा किया और फार्म में मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने तकरीबन 1100 कनाल रकबे पर फैले फार्म के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और वहां अपनाए गए मुख्तलिफ इक़दाम का जायजा लिया। महकमे ज़राअत की जानिब से आज पुलवामा में इंजीनियरिंग विंग में तैयार किए गए चीज़ों की नुमाइश मुनक्किद की गई। चीफ एग्रीकल्चर अफसर पुलवामा ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में मुख्तलिफ चीज़ें रियायती दामों पर दस्तयाब रही। तराल इलाके की दूरफ्तादा गुजरबस्ती दोदकुलन लरगाम में आज महकमे ICDS ने महिला शक्ति केंद्र पुलवामा के इश्तराक से एक जानकारी कैंप का एहतमाम किया। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र ने शहद की मक्खियां पालने के सिलसिले में 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट मेराजुद्दीन ने चीफ एग्रीकल्चर अफसर कुपवाड़ा की मौजूदगी में किया। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन ने शोपियां के नसरपुरा इलाके में कायम एक तिब्बी मरकज में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। तिब्बी कैंप में दूर दराज इलाकों से आए दर्जनों अफराद ने अपनी जांच कराई और मुफ्त दवाएं हासिल की। भदरवा में फौज ने दूरफ्तादा गांव धारा में मकामी लोगों के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। फौज के डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और उनका मुफ्त इलाज किया और कैंप के दौरान अद्वियात भी तकसीम की गई। दिल्ली में सिख कम्युनिटी की लड़की के साथ हुई इज्तिमाई इस्मत रेजी की मुखालफत में भुज में कैंडल मार्च निकाला गया। सिख नौजवान सभा ने मार्च में दिल्ली पुलिस की मुखालफत की और मुतासरा को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से आज कुपवाड़ा में सब्जियों की पैदावार में इजाफा और तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के सिलसिले में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तकरीब में किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रटसना तराल के लोग नाला वातल आरा पर पुल तामीर करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके के लोगों को लंबी मसाफत तय करने के बाद तराल पहुंचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 40 बरस कबल महकमे दही तरक्यात ने इस नाले पर पुल तामीर किया था, ताहम चंद रोज के बाद ही वो सैलाब की नजर हो गया। उन्होंने बताया कि तब से वो पुल तामीर करने की इंतजामिया से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस इकदाम नहीं उठाया गया है। गोस इमीडिएटली कदुल दिन याद बनोक आज ब्रो 50-40 वरी ब्लॉकन कदुल काल बनोक तो अकि रेत वो सहलाब तो सह कदुल तो तमिक सह ढांचे तथी रोपये कजक तो तथ आय न कहीं यह सा यह फायदा आव न सह। लिहाजा बह गुजारिश कर तुज वज बेन इलाकन वनकन सारी डेवलपमेंट चलान वही गो त्राल ये सिर्फ अफसर वन पगह करो कल करो जमीनी। पुंछ सिटी के साथ ही जिला भर में PDD की जानिब से बिजली के ट्रांसफार्मर्स खुले में बिना फेंसिंग तारों के नस्ब किए गए हैं, जिसके सबब ये ट्रांसफार्मर्स लोगों की जानों का खतरा बने हुए हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया और महकमे PDD से सभी ट्रांसफार्मर्स के फेंसिंग कराने और इनको जमीन से कम अज कम 10 फुट की बुलंदी पर नस्ब करने की मांग की है। जहाँ पे भी ऐसे ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं उन ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द जो है एक अच्छा सिस्टमेटिकली तौर पर उसको जो है प्रोक्योर और सिक्योर करें और फेंसिंग करके उसको इस तरीके से रखें कि अगर बच्चा भी कहीं आता है या बच्चे के अलावा अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई कुत्ता है या माल मवेशी यहाँ से गुजरते भी हैं लोगों के, तो अगर वो भी इसके साथ लग जाएंगे तो वो जान लेने के बगैर तो ये छोड़ते नहीं। बाउंड्री वॉल नहीं है मेरे पीछे ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं, कहीं छोटे बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, कहीं और भी बच्चे आ जाते हैं, कई बार बारिश होती है उसमें की वजह से भी इसमें अर्थ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ये बहुत बड़ी नालायकी है हमारे PDD डिपार्टमेंट की। उनको इस चीज़ के लिए कम से कम 10 फुट का इसकी जो है हाइट होनी चाहिए थी, इसकी हाइट ना होने की वजह से कहीं
PMIAY स्कीम उन लोगों के लिए मकानात की तामीर के मकसद से शुरू की गई थी जो खत गुर्बत से नीचे आते हैं, लेकिन शोपियां की ज़्यादातर आबादी इस स्कीम से खुश नहीं, क्योंकि मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि JKPMIAY के 90% मुस्तहक अफराद को स्कीम से दूर रखा गया। स्कीम को करप्शन और पार्टी एसोसिएशंस की बुनियाद पर फ़रोख्त किया जा रहा है। मकामी लोगों ने मुतल्लिक़ अफसरान पर स्कीम को खुलूस नीयत से अमली जामा नहीं पहनाने का इल्ज़ाम लगाया। मकामी लोगों ने LG इंतज़ामिया से अपील की कि महकमे को काम पर लगाया जाए और उन लोगों के लिए खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू की जाए जिसने जानबूझकर गैर मुस्तहक ख़ानदानों की हिमायत की है और मुस्तहक ख़ानदानों को स्कीम से दूर रखा है। ये काम है जी, ये जो IY केस है जहाँ गरीबों लोगों का है, ये ऐसे ही दरखास्त जाते हैं, वापस मुड़ के हमको नाम ही नहीं उठाते। आज तक हमको जो भी प्रॉब्लम आ गई है, जहाँ कहीं भी आ गई है, कोई भी महकमा आता है, हमारे तरफ में अपनी कोई भी तवज्जो देते नहीं है। IY का केस इन लोगों को मिलेगा। ये 120 घर है चड़क माला के मौजा पथरी में, तो इन लोगों को उस स्कीम से अभी तक महरूम रखा गया है। किसी को कोई भी IY केस नहीं निकला है आज तक। जो आप मेरे पीछे मकान देख रहे हैं, ये कोठा डोगा देख रहे हैं, ये लोग इन कच्चे घरों में रहते हैं। तो जो मकानों वाले होते हैं, उन लोगों को कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।